بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹ، انشاءاللہ آج ہم کرنٹ افیئر پڑھیں گے 2023 کے، جس میں ہمارے پاس نیشنل لیول پہ بھی ہوں گے اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہوں گے، اور یہ آل کمپٹیٹیو ایگزامینیشن کے لیے ہوں گے، لائک ایف پی ایس سی، پی پی ایس سی، کے پی پی ایس سی، سندھ پبلک سروس کمیشن، اور اس کے علاوہ ایٹا اور آرمی تمام کے لیے۔ یہ مکمل ڈیٹیل میں ہے، نیشنل پہ ہے، انٹرنیشنل پہ ہے، اکانومی پہ ہے، اسپورٹس پہ ہے، سائنس اینڈ ٹیک پہ ہے، پرسنس ان نیوز پہ ہے، سمٹس اینڈ کانفرنسز پہ ہے، اور مسلینیس پہ ہے۔ اس کے علاوہ اس میں اور بہت سارے انفارمیشن دیے ہیں اکارڈنگ ٹو دی پی ایم اینڈ پریزیڈنٹس اینڈ فیمیل پریزیڈنٹ۔ سو لیٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے پاس 30 دسمبر 2022 کو چائنا نے ایک نیا وزیر خارجہ اپنا اپوائنٹ کیا تھا، جو کہ اس سے پہلے یو ایس میں ایمبیسڈر تھا۔ وہ صاحب یہ ہیں ایمبیسڈر کنگ گینگ، جو کہ پہلے یو ایس میں ایمبیسڈر تھے اور ابھی نئے فارن منسٹر ہیں چائنا کے۔ انہوں نے وانگ یی کو ریپلیس کیا ہے۔ وانگ یی یہ صاحب ہیں، یہ اے والے، یہ ہے وانگ یی، یہ پہلے تھے فارمر فارن منسٹر تھے، اور نیو یہ والے ہیں بی کنگ گینگ۔ اور یہ صاحب جو ہے نا اینکو والے، یہ پاکستان میں ایمبیسڈر ہے چائنا کے، نونگ رونگ ان کا نام ہے، جو پاکستان میں چائنا کے ایمبیسڈر ہیں۔ لیٹس سٹارٹ نیکسٹ۔ یہ چیف صاحب نے جو ہے 118 مڈ شپ مین اینڈ 26 شارٹ سروس کمیشن کے افتتاحی پاسنگ آؤٹ میں گئے تھے نیول اکیڈمی کراچی میں، اور یہ 31 دسمبر کو ہوا تھا 2022 میں ان کا پاسنگ آؤٹ۔ 118 مڈ شپ مین اور 26 شارٹ سروس کمیشن، یہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیوی کا جو فرسٹ کمانڈر ان چیف تھے وہ تھے جیمز ویلفرڈ جیفرڈ۔ یہ پہلے جب پاکستان آزاد ہوا تھا 1947 میں، اس وقت فرسٹ کمانڈر ان چیف آف رائل پاکستان نیوی کے تھے۔ اس کے علاوہ پاک بحریہ کا موٹو ہے ہمارے پاس حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور سلوگن ہے ہمت کا علم، اللہ کا کرم، موجوں پہ قدم۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس پاکستان میں 4 ٹائمز زیادہ سوسائڈ اٹیکس ہوئے ہیں 2022 میں۔ یہ تقریباً 2021 کے مقابلے میں 4 ٹائمز زیادہ ہوئے ہیں۔ 2022 میں پاکستان فیس ایٹ لیسٹ 15 سوسائڈز بمبنگ، 15 دھماکے ہوئے 2022 میں اونلی، اور 2021 میں صرف 4 ہوئے تھے ہمارے پاس، اور اس میں ٹوٹل 376 ٹیرر اٹیکس ہوئے ہیں 2022 میں، جس میں 533 لوگ کل ہوئے اور 832 یعنی 832 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ 2022 پورے سال کے انڈیکس ہے ہمارے پاس کہ کتنے فوت ہوئے ہیں اور کتنے زخمی ہوئے ہیں ہمارے پاس۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس یہ ہے فیصل کریم کنڈی۔ اس کو سلائیڈز میں ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ ان صاحب کے پاس جو ہے نا 2 اتھارٹیز ہیں، 2 منسٹری ہے۔ ایک تو یہ ہے منسٹر آف اسٹیٹ افیئر فار پاورٹی ایلیویشن فیصل کنڈی کے پاس، اور سیکنڈ یہ ہے یہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہیں۔ یہ 17 ڈپٹی اسپیکر تھے نیشنل اسمبلی کے 2008 سے 2013 تک، اور ان کا تعلق کے پی سے ہے، اور انہوں نے پولیٹیکل کیریئر جو ہے نا 2003 میں سٹارٹ کیا ہے، اینڈ سرو ایز اے پی 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 ڈویژنل کوآرڈینیٹر ڈی اے خان ڈویژن، اور یہ ڈی اے خان ڈویژن میں ایز اے ڈویژنل کوآرڈینیٹر تھے پی 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 کے، اور یہ نون لیگ کے پی ایم کے ساتھ ہیں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر، کیونکہ آج کل پی ڈی ایم کی حکومت ہے، سو دیٹس وائی مکس منسٹر چل رہے ہیں منسٹریز۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس اکارڈنگ ٹو دی ورلڈ پاپولیشن ریویو دی ٹاپ لارجسٹ سٹی بائی پاپولیشن، اور اس کے علاوہ یہ ٹاپ سٹی بائی پاپولیشن ہے، اور ڈیش از پیئنگ فیملی 1 ملین ین پر چائلڈ ٹو موو آؤٹ ٹوکیو۔ تو اس کا جواب ہے جاپان جو ہے نا وہ 1 ملین ین دے رہا ہے پر چائلڈ کو کہ وہ ٹوکیو سے باہر چلے جائے، کیونکہ کرونا وائرس کے بعد بہت زیادہ آبادی بڑھ گئی ہے ٹوکیو شہر کی، اور یہ ان لوگوں کو دے رہے ہیں جو 18 سال سے کم ہیں۔ 18 سال سے جو لڑکے کم ہیں ان کو باہر جانے کے لیے جاپان حکومت 1 ملین ین دے رہی ہے کہ آپ باہر کو موو کر دیں، کیونککہ ٹوکیو کیپیٹل جو ہے جاپان کا وہ بہت زیادہ کنجسٹڈ ہو چکا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوکیو میں اتنے لوگ ہیں، 3,745435,191 3,74,35,151 لوگ جو ہے نا وہ ٹوکیو جاپان کے میں سٹی میں رہتے ہیں۔ بہت زیادہ سیکنڈ پہ دلی ہے، تیسرے پہ شنگائی ہے، 4 پہ پولو برازیل ہے، 5 پہ میکسیکو ہے، پھر کائرو ہے، ڈھاکا ہے، ممبئی ہے، بیجنگ ہے، اور پھر اوساکا جاپان، یعنی جاپان کے 2 سٹیز جو ہیں نا وہ موسٹ پاپولیٹڈ ہیں ورلڈ ٹاپ 10 میں۔ نیکسٹ ہمارے پاس نیٹو کا جو سیکرٹری جنرل ہے، کیونکہ آج کل رشیا یوکرین وار کی وجہ سے نیٹو کافی ان ہے، کیونکہ یہ جنگ اسی کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ یوکرین جو تھا وہ نیٹو جوائن کر رہا تھا، تو نیٹو کے سیکرٹری جنرل کے آج کل بڑے بیانات آ رہے ہیں نیوز میں، سو اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ تو یہ ہے ہمارے پاس نیٹو سیکرٹری جنرل، ہمارے پاس ہے جینس اسٹولٹنبرگ۔ اور اس کے علاوہ تھوڑا نیٹو کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ اس کو نارتھ اٹلانٹک الائنس بھی کہتے ہیں یا انٹر گورنمنٹل ملٹری الائنس بھی کہتے ہیں، بٹوین 30 ممبر اسٹیٹس، 28 یورپین اور 2 امریکن ہے۔ اس میں 28 یورپین ہے، 2 امریکن ہے،
इसके अलावा फाउंडर इसका यूनाइटेड स्टेट है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है, इटली है, नॉर्वे है। इसके अलावा ये 1945 अप्रैल 4 1945 वाशिंगटन डीसी में बना। हेडक्वार्टर इसका ब्रसेल्स बेल्जियम में है हमारे पास। और नेटो का गोल जो है ना वो सेफगार्ड द अलायंस फ्रीडम एंड सिक्योरिटी, यानी फ्रीडम एंड सिक्योरिटी बाय पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मींस, ये सिक्योरिटी को इंश्योर करता है बाय पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मींस के। इसके अलावा जो नेटो के ममालिक का मतलब ये है कि एक पर हमला सब पे हमला, तो ये इस बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। और ये देख सकते हैं कि ये नेटो अलायंस है, कनाडा है, अमेरिका है, पुर्तगाल है, इसके अलावा यूके है, टर्की है, ये बहुत सारे ममालिक है, इटली है, ये सारे ममालिक जो है ना ये नेटो के में शामिल। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास गवर्नमेंट टारगेट 1 मिलियन मैन पावर एक्सपोर्ट इन 2023 से साजिद तूरी। इसमें दो चीजें भी आपको याद करनी है कि एक गवर्नमेंट का टारगेट कितना है 2023 में बाहर लोगों को भेजने का, वो है 1 मिलियन यानी 10 लाख लोगों का भेजना। सेकंड ये है कि फेडरल मिनिस्टर ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास है साजिद तूरी साहब। और इसके अलावा ये हमारे पास इंडेक्स है अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ ब्रेन ड्रेन विटनेस इन 2022। ब्रेन ड्रेन का मतलब ये है कि टैलेंटेड लोग जो है ना वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं, पढ़े लिखे स्किलफुल, तो वो 2019 में थे 15,475 और 2022 में 92,000 को ये तादाद पहुंच गई है, जो कि बहुत बड़ा मसला होगा पाकिस्तान के नेक्स्ट फ्यूचर में, क्योंकि इतने सारे लोग अगर पढ़े लिखे मुल्क से चले जाएं तो ये वाकई में ब्रेन ड्रेन है, जिसकी वजह से यहाँ स्किल्स की शॉर्टेज होगी। ऑलरेडी केपी में जो है ना स्किल्स की शॉर्टेज है, पंजाब से लोग, सिंध से वर्कर जो है ना वहाँ मंगवाए जाते हैं, उनसे काम लिया जाता है। मुल्क में स्किलफुल लोगों की काफी कमी है। इसके बाद हमारे पास जनवरी 1 पर 1 जनवरी पे हमारे पास ग्लोबल फैमिली डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक स्टार्ट है न्यू ईयर का विद द मैसेज ऑफ पीस, यानी साल को एक पीस के मैसेज एंड यूनिटी अमंग द पीपल के साथ जो है ना ये मनाया जाता है, इस वजह से कि नए साल को हम स्टार्ट करें विद पीस एंड यूनिटी अमंग द पीपल। और ये हर साल 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे बनाया जाता है। और इसका थीम 2023 का हमारे पास है वर्किंग टुवर्ड्स ए बेटर फ्यूचर। सो दैट्स व्हाई इस तरह के जबरदस्त इंफॉर्मेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब स्टार्ट इकरा। थैंक यू। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास है क्रोएशिया बिकेम द 20th कंट्री टू अडॉप्ट द यूरो एज ए ऑफिशियल करेंसी। क्रोएशिया जो है हमारे पास 20वां मुल्क है जिसने यूरो को एज ए करेंसी अडॉप्ट कर दिया है। इसमें दो चीजें हैं कि 2023 में किस मुल्क ने एज ए यूरो अपने करेंसी अडॉप्ट किया है, तो वो हमारे पास है क्रोएशिया। और इसका नंबर क्या है? 20वां नंबर है। और ये इफेक्ट होगा 1 जनवरी 2023 से। और वैसे अपना इसका क्रोएशिया का करेंसी थी क्रोएशियन कूना। और जो यूरो करेंसी में एंटर हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं? यूरो जोन। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में। नेक्स्ट हमारे पास है स्वीडन हैज assumed the presidency of यूरोपियन यूनियन काउंसिल फॉर द फर्स्ट 6 months ऑफ ईयर। यानी अभी जनवरी में किस मुल्क ने यूरोपियन यूनियन काउंसिल की प्रेसिडेंसी हासिल की है, तो वो स्वीडन है हमारे पास 1 जनवरी पर। ठीक है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन काउंसिल प्रेसिडेंसी इज रोटेटेड एवरी 6 months। और ये जो यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी है ये हर 6 माह के बाद जो है ना रोटेट होती है। और ये आप साथ पिक्चर में डिटेल भी देख सकते हैं। और स्वीडन ने ये प्रेसिडेंसी हासिल की है 3rd टाइम, भी ये 3री दफा ये ले रही। और ये प्रेसिडेंसी की जो है रोटेट होती है अमंग द यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स। नेक्स्ट देखते हैं चाइना ने जो है ना हाइड्रोजन अर्बन ट्रेन जो है ना लॉन्च किया है। और ये फर्स्ट इन एशिया एंड 2nd ट्रेन इन द वर्ल्ड है। और इसी तरह का हाइड्रोजन अर्बन ट्रेन इससे पहले जर्मनी ने लॉन्च किया था, जो वर्ल्ड में नंबर 1 था। और एशिया में सबसे पहले किसने लॉन्च किया, तो वो हमारे पास चाइना है। इसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने विजिट किया था सूरिया का। कब किया था? ये 4 से 10 जनवरी का था। इसके दौरान ये किंग सलमान से मिला था। और इसके अलावा यूएई के प्रेसिडेंट्स और इसके अलावा दुबई के प्रेसिडेंट से मिले थे। और इनका ये दौरा 4 से 10 जनवरी के दरमियान था। इसमें यूएई और सूरिया दोनों शामिल 4 से 10 दिन के दौरे में जनवरी में जो हुआ था, अकॉर्डिंग टू दी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है वर्ल्ड ब्रेली डे जो है ना हमारे पास एवरी 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया या ऑब्जर्व किया जाता है। और हमारे पास जो है ये द डे इज मार्क रिमेम्बरिंग द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ल्यूइस ब्रेली। ये ल्यूइस ब्रेली ने
دراصل یہ اس کی یاد میں کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے بھی وہ آنکھوں سے جو تھی وہ معذور تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ طریقہ، یہ آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں، یہ ڈاٹڈ شیٹ، یہ طریقہ انہوں نے نکالا تھا کہ کس طرح اگر جو بچے آنکھوں سے معذور ہوں وہ کس طرح پڑھنا اور لکھنا کریں گے، یعنی آگے زندگی میں اپنے آگے کس طرح بڑھیں گے اور پڑھائی اور لکھائی کس طرح کریں گے، اس نے یہ میتھڈ نکالا تھا، یہ بریلی ڈے. سو دیٹس وائی یہ ہمارے پاس ہمارا ایک ایمبیسڈر تھی جو UN میں تھی، سامیہ سلیم. ایکسپیرینس دی رائٹ ٹو ریپلائی ٹو ریسپونڈ دی انڈیا کمنٹس آن کشمیر ڈیورنگ دی 76 UNGA جنرل ڈیبیٹ. یہ جو ہمارے پاس سامیہ سلیم ہے، یہ ان کو بھی یہی بیماری ہے بریلی والا، اور یہ جو ہے نا پاکستان کی انہوں نے نمائندگی 76 یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں، اور ان کو بھی یہی بیماری ہے اور یہ بھی یہی بریلی میتھڈ یوز کرتی ہیں اپنی پڑھائی کے لیے، اور اسی کے تھرو اس نے CSS کلیئر کی اور آگے ہمارے پاس جو ہے نا اتنے بڑے پوزیشن پہ آ گئی اور اپنی معذوری کو جو ہے نا جواز نہیں بنایا اور زندگی میں اتنی بڑی کامیابی حاصل کی. سامیہ سلیم. اس کے بعد کشمیر ٹو آبزرو دی رائٹ ٹو سیلف ڈیٹرمنیشن ڈے آن جنوری 5. یعنی کشمیر، ابھی کشمیر کے حساب سے ہی میں نے 2-3 سلائڈز انٹر کیے ہیں کیونکہ کشمیر کے کافی سارے ڈیز ہیں تو کوئی بھی آ سکتا ہے، اس وجہ سے میں نے پکٹوریل ویو ایڈ کیا ہے کہ آپ کو جو ہے نا پک کرنے میں اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں اور یاد کرنے میں اور دوبارہ ایگزامینیشن میں ریویو کرنے میں آسانی ہو. تو اس لیے یہ تینوں پکچر ہیں اور مختلف ڈیز ہیں. یعنی 5 فروری کو کشمیر سولیڈیریٹی بنایا جاتا ہے اور 5 جنوری کو کشمیر رائٹ ٹو سیلف ڈیٹرمنیشن منایا جاتا ہے. ان دونوں کو آپ جو ہے نا کمپیئر کریں، یعنی 5 جنوری کو سیلف ڈیٹرمنیشن اور 5 فروری کو سولیڈیریٹی ڈے اور 27 اکتوبر کو کشمیر بلیک ڈے ہمارے پاس منایا جاتا ہے. تو اس طرح یہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. نیکسٹ ہمارے پاس ورلڈ وار آرفن ڈے آبزرو کیا جاتا ہے 6 جنوری پر. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ورلڈ وار پکچر میں ورلڈ ڈے آف وار آرفن 2022 یہ ہمارے پاس 6 جنوری کو بنایا جاتا ہے. 6 جنوری 2022، 6 جنوری 2023، اسی طرح 6 جنوری کو ہمارے پاس یہ منایا جاتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے ٹو کریٹ دی اویئرنیس اباؤٹ دی پلیج آف چلڈرن ہو ہیو لاسٹ دیئر پیرنٹس ڈیو ٹو کنفلکٹ. ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے، ان کا دھیان رکھنے کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے. اور 2023 میں جو آرفن ڈے ہے ہمارے پاس وار آرفن ڈے، اس کا تھیم ہے ہمارے اسٹینڈنگ اپ فار وار افیکٹڈ چلڈرن. نیکسٹ ہمارے پاس ہے، یہ برازیل کے 39 پریزیڈنٹ بن گئے ہیں. ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے لیوز اناسیو لولا دا سلوا. یہ برازیل کے 39 پریزیڈنٹ بن گئے ہیں اور یہ برازیل کے پہلے صدر ہیں جو کہ 3rd ٹائم آفس میں آ چکے ہیں. اس سے پہلے 2 دفعہ یہ بن چکے ہیں. اس کے علاوہ ان کے 2 ٹرمز جو پہلے تھے 2003 سے 2006 کے درمیان تھا اور سیکنڈ جو تھا وہ 2007 سے 2011 کے درمیان تھا. یہ 2023 میں بنے ہیں جنوری میں. پریزیڈنٹ 39 پریزیڈنٹ آف دی برازیل لیوز انسانیو لولا دا سلوا. اس کے علاوہ ٹارگیٹ ٹو اچیو ایز اے ڈونر آف 10 بلین فار دی پاکستان فلڈ ریکوری. یہ انٹرنیشنل کانفرنس آف کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان میں جو کہ جنیوا میں ہوا اور اس کو ہولڈ کیا پاکستان نے اور اس کے علاوہ UN نے. یہ 9 جنوری 2023 میں ہوا ہمارے پاس اور اس میں 10 بلین ڈونیشن کی اناؤنس کی انٹرنیشنل ڈونرز نے کہ پاکستان کو جو درپیش مسائل ہے، رائزنگ فنڈز ٹو فائٹ کلائمیٹ ڈیزاسٹر ان پور کنٹری، سیکیور 10 بلین پلیجز فرام دی انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیٹیوشن. اس میں 2 چیزیں آپ نے کو یاد کرنی ہے. ایک 10 بلین ڈالر یاد کرنے ہیں کہ انٹرنیشنل کانفرنس آن کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان میں کتنے ملے پاکستان کو پیسے؟ 10 بلین ڈالر. سیکنڈ، یہ کس نے آرگنائز کی؟ یہ پاکستان اور یونائٹڈ نیشن نے آرگنائز کی جس میں شہباز شریف اور انٹونیو گٹرس تھے. اور اس کے علاوہ یہ کہاں پہ ہیلڈ ہوئی؟ یہ جنیوا میں ہوئی 9 جنوری 2023 میں. اور یہ پھر ڈفرینٹ ممالک ہیں کہ انہوں نے ڈونرز آرگنائزیشن ہے 4.2 دیا اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے، 2 بلین دیا ڈیولپمنٹ بینک نے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے، 1 بلین فرام ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک نے اینڈ 1 بلین فرام سعودی عربیہ. 1 بلین سعودی عربیہ نے دیا. اس طرح اور ممالک نے پیسے دیے اور ٹوٹل مل کے 10 بلین ہو گئے ریکوری. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکسیسفل فارن پالیسی آف کولیشن کی پورا چارٹ ہے کہ کس ملک نے کتنے پیسے دیے. انٹرنیشنل کمیونٹی پلیجز فائنینشیل ایڈ ٹو مور دین 9 بلین ڈالر فار دی ریہیبلیٹیشن آف فلڈ وکٹم. اور یہ سارا کس وجہ سے ہوا؟ کہ جو پاکستان میں فلڈ آئے تھے اس کو اس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ان ممالک نے اتنے ملین ڈالر دیے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے 4.2، ورلڈ بینک نے 2 بلین، اس کے علاوہ سعودی عرب نے 1 بلین اور اس کے علاوہ ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک نے 1 بلین، ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے 500 ملین، اس طرح قطر نے 25 ملین، UK نے 43. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سلائیڈ میں. یہ پورا چارٹ میں نے دیا ہوا ہے، آپ ایک نظر سے دیکھ
دیکھ لیں اور آپ کو ایک پکٹوریل ویو مل جائے گا. سو نیکسٹ اسٹارٹ کرتے ہیں کہ سی ایم شوڈ ہیو سپورٹ دی 186 ممبر اراؤنڈ دی کلاک. یعنی جو ووٹ آف کانفیڈنس پرویز الہی صاحب نے اسمبلی میں لیا تھا اس میں اس کو کتنے بندوں نے سپورٹ کیا تھا؟ 186 ممبر نے سپورٹ کیا تھا. اور یہ ووٹ آف کانفیڈنس سی ایم نے 12 جنوری کو لیا تھا جس میں اسپیکر سبطین خان تھے جس نے پریزائڈ کیا سیشن کو اور ڈکلیئر کیا دی ٹرسٹ موشن ان فیور آف دی سی ایم الہی. سوری یہ ٹرسٹ موشن تھا ان دی فیور آف سی ایم الہی ریسیو 186 ممبر. یہ جو ٹرسٹ موشن تھا ووٹ آف اعتماد کا اس میں پنجاب اسمبلی میں 186 ووٹ جو ہے پرویز الہی کو پڑے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے سیٹس ہیں ہر صوبے کے پاس اس کے پروونس میں. تو بلوچستان کے ٹوٹل سیٹس ہیں 65 جس میں 51 جنرل سیٹس ہیں. وومین کے لیے 11 ہیں اور نان مسلم کے لیے 3 ہیں. اس کے بعد کے پی ہے 99 جنرل ہے 22 وومین کے لیے ہے 3. یہ آپ چارٹ اس طرح دیکھ سکتے ہیں. اس طرح پنجاب کے 297 جنرل ہے 66 وومین کے لیے ہیں 8 نان مسلم کے لیے تو ٹوٹل 371 بنے. سندھ کے 168 ہیں. اس کے علاوہ بعد میں جو کے پی میں چینجز ہوئی ہے وہ بھی اس میں نے ڈالی ہوئی ہے. دی نمبر آف پروونشل سیٹ فار کے پی ہیز بین انکریز ایز اے ریزلٹ آف مرجر. یہ فاٹا کے مرجر کے بعد چینج ہوئے. آفٹر دی 25th کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ واز پاسڈ پارلیمنٹ میں 2018. یہ فاٹا کا جو مرجر ہوا ہے یہ 25 کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی وجہ سے ہوا جو پارلیمنٹ میں ہوا 2018 میں. This change will take effect the general election 2018. The new number of seat for KP Assembly according to the 25 constitutional amendment is given. فاٹا کا جنرل سیٹ ابھی کتنے ہو گئے؟ 115 جنرل سیٹ ہو گئے, 26 وومین کے لیے ہو گئے اور اس کے علاوہ 4 نان مسلم کے لیے ہوئے اور ٹوٹل 145 ہو گئے. پہلے خیبر پختونخوا کا 124 تھا ابھی 143 ہو گئے. عورتوں نان مسلم کے پہلے 3 تھے ابھی 4 ہو گئے. وومین کے پہلے 22 تھے ابھی 26 ہو گئے اور جنرل 99 تھی ابھی 115 ہو گئے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہاں سے ایزیلی یاد کر سکتے ہیں. اسی طرح کے زبردست ویڈیوز اور زبردست انفارمیشن کے لیے پلیز سبسکرائب اور اسٹارٹ کرا چینل. اس میں سر ہماری بہت زیادہ محنت لگتی ہے سو پلیز سبسکرائب. اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم اسی طرح کے زبردست انفارمیشن آپ کے لیے لاتے رہیں گے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے پاکستان پرائم منسٹر نے جو UAE کو وزٹ کیا وہ کب سے کب کیا اور کتنے دنوں کا تھا؟ یہ 12 سے 13 جنوری کو شہباز شریف نے وزٹ کیا اور یہ کس لیے؟ ریویمپنگ آف بائیلیٹرل اکنامک اینڈ ٹریڈ ٹائز کے اکنامک اور ٹریڈ ٹائز کو انہینس کرنے کے لیے ریویمپنگ کے لیے یہ کیا. اور یہ پی ایم کا تیسرا وزٹ تھا. اس سے پہلے وہ 30 اپریل 2022 کو پہلے وزٹ کر چکے ہیں, دوسرا 15 مئی 2022 کو کر چکے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ پی ایم شہباز شریف ملے ہیں شیخ محمد بن زید ال نہیان پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ عرب امارات. یہ پریزیڈنٹ ہے UAE کے جس سے وہ ملے ہیں. ان کا نام کیا ہے؟ شیخ محمد بن زاہد ال نہیان. نیکسٹ دیکھتے ہیں کراچی میں جو ہے نا فرسٹ الیکٹرک بس لانچ ہوئی ہے 13 جنوری کو. اس میں آپ نے 2 چیزیں یاد کرنی ہے. کب لانچ ہوئی؟ 13 جنوری کو. کون سی بس تھی؟ فرسٹ الیکٹرک بس ہوئی. کہاں پہ لانچ ہوئی ہے؟ کراچی میں لانچ ہوئی ہے. اور جو ان کا فارن منسٹر ہے انفارمیشن منسٹر ہے شرجیل انعام میمن, اس نے 13 جنوری کو اناؤنس کیا کہ پاکستان فرسٹ الیکٹرک بس ان کراچی. اور اس کے علاوہ یہ اور سٹیوں میں بھی جائیں گے. اور کراچی کو کیا نام ہے, نک نیم کیا ہے؟ کراچی کو ہم سٹی آف لائٹس بھی کہتے ہیں, پیرس آف ایسٹ بھی کہتے ہیں, برائڈ آف سٹیز بھی کہتے ہیں اور سٹی آف قائد بھی کہتے ہیں. یہ 4 نام ہے کراچی. برائڈ آف سٹی مطلب اور پیرس آف سٹی اور سٹی آف لائٹس اور سٹی آف قائد, یہ تینوں یہ چاروں اس کو بولے جاتے ہیں کراچی کو. وچ ڈیٹ اینیورسری آف عرفہ کریم ان جنوری ڈیٹ اینیورسری. تو یہ ہمارے پاس عرفہ کریم جو ہے یہ پاکستان کی ینگسٹ مائکروسافٹ پروفیشنل تھی اور یہ ہمارے پاس ینگسٹ مائکروسافٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل ایٹ دی ایج آف 9 2004 میں بنی. اس کے علاوہ یہ پیدا ہوئی 1995 میں فیصل آباد میں اور یہ ڈائڈ ہوئی 14 جنوری کو. تو 14 جنوری کو اس کی ڈیٹ اینیورسری بنائی جاتی ہے ایٹ دی ایج آف 16 ایئر میں یہ فوت ہوئی. اور سرٹیفائڈ کب ہوئی؟ ینگسٹ مائکروسافٹ سرٹیفائڈ یہ ہمارے پاس ینگسٹ سرٹیفائڈ بنی عرفہ کریم 9 سال کی عمر میں. اور یہ فوت کب ہوئی؟ 16 سال کی عمر. اور یہ CMH لاہور میں وفات پا گئی تھی. اور اس کے علاوہ اس کو ایوارڈز کون کون سے ملے تھے؟ اس کو ایوارڈز ملے
थे फातिमा जिन्ना गोल्ड मेडल 2005 प्रेसिडेंशियल परेड परफॉर्मेंस 2005। तो और इसकी याद में पाकिस्तान ने 8 रुपए का स्टैम्प भी निकाला था ऑन दी बर्थडे इन 2012 में। तो ये इन्फॉर्मेशन है अरफा करीम के बारे में। नेक्स्ट आर्ट देखते हैं। प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब वाज डिसॉल्व। ये पंजाब असेंबली के दोनों डिसोल्यूशन लेटर हैं जो सीएम ने गवर्नर को भेजे थे। पंजाब की ये जो असेंबली डिसॉल्व हुई ये कितने नंबर की थी? ये 17वें प्रोविंशियल असेंबली थी पंजाब की जो 14 जनवरी को डिसॉल्व हो गई थी। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 112 सबसेक्शन 1 द असेंबली स्टैंड ऑटोमेटिकली डिसॉल्व एट द एक्सपायरेशन ऑफ 48 आवर। 48 घंटों के अंदर अंदर जो है ना ये असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। आफ्टर द चीफ मिनिस्टर हैज सो एडवाइस इफ द गवर्नर डज नॉट डू इट। अगर गवर्नर नहीं करेगा तो 48 घंटों के अंदर अंदर असेंबली खुद डिसॉल्व हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 112। और ये कौन सी असेंबली थी? ये 117 थी, ये 14 जनवरी को हुई थी। और ये इसका ऑर्डर कब हुआ था? ये 12/1/2023 को उसने लेटर भेजा था। और केपी की जो डिसोल्यूशन हुई थी, डिसॉल्व हुई थी, वो 11वीं असेंबली थी, प्रोविजनल असेंबली थी जो 18 जनवरी को हो गई। ये देख सकते हैं हाजी गुलाम साहब को जो है ना लेटर लिखे है 18/01/2023। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें कुछ आर्टिकल्स हैं अकॉर्डिंग टू दी डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली। तो ये है गवर्नर जो है स्टेट दैट इन टर्म ऑफ आर्टिकल 224(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है ये किसके कंसल्टेशन से बनेगा? ये बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर। ये जो गवर्नर है ये सीएम के साथ कंसल्टेशन करेगा और इसके अलावा लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ करेगा। और ये टोटल कितने दिनों में होंगे? ये 3 दिनों में होंगे। इसके अलावा ये हाजी गुलाम अली साहब हैं, ये जो लेफ्ट साइड पे हैं ये साहब, ये हाजी गुलाम साहब है, ये केपी के गवर्नर हैं और ये साथ में सीएम आजम है। इसके अलावा आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 डिसॉल्व द असेंबली। और असेंबली को गवर्नर ने किस आर्टिकल के मदद से डिसॉल्व किया? 112 के आर्टिकल के अकॉर्डिंग टू इसको डिसॉल्व किया। इसके अलावा the later further mentioned that in terms of class 4 of article 224A of constitution the incumbent यानी जो मौजूदा सीएम है महमूद खान shall continue to hold office to perform day to day। यानी जब तक नया सीएम नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 224A तो यही जो सीएम मौजूदा है ये डे टू डे परफॉर्मेंस चेक करेगा। इसके अलावा ये हमारे पास जो नए केयर टेकर्स के कैंडिडेट हैं हाजी गुलाम अली, ये हमारे पास है हाजी गुलाम अली ए वाले, ये गवर्नर है केपी के, और ये आजम खान है केयर टेकर। ये हाजी गुलाम साहब जो है ना ये JUI से हैं और आजम खान जो है ना ये प्रीवियस ब्यूरोक्रेट ये सीएम बने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेपाल में जो इंसिडेंट हुआ 68 पीपल मर गए जो एयरप्लेन क्रैश हुआ। ये कब हुआ? ये 15 जनवरी में हुआ। इसमें 68 लोग मारे गए और ये एक फ्रांस की कंपनी का जहाज था जिसको हादसा हुआ और ये कहां से कहां जा रहा था? ये काठमांडू से पोखरा जा रहा था, ये आप देख सकते हैं। और अभी तक इसका पता नहीं लगा कि किस वजह से हुआ है, अलबत्ता इसकी वीडियोस वगैरह आई हुई हैं। तो इसमें 68 लोग मरे थे। 15 जनवरी को यह हादसा हुआ था इंटरनेशनल लेवल पर। इसके अलावा हमारे पास पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के वनडे सीरीज की स्टेटिस्टिक्स हैं जिसमें पहला वनडे जो है हमारे पास पाकिस्तान ने विन किया, सेकंड न्यूजीलैंड ने किया, थर्ड भी न्यूजीलैंड ने किया। इसी वजह से ये ODI सीरीज जो है और न्यूजीलैंड ने जीत ली जो कि जनवरी में हमारे पास हुई। इसके बाद ये केपी सीएम अनाउंसेस केपी असेंबली डिसोल्यूशन। ये सीएम केपी की डिसोल्यूशन लेटर है कि ये हमारे पास 18/01/2023 को हुआ था और सीएम ने ये देख सकते हैं कि इसमें आर्टिकल इसमें ये 2 चीजें आपने याद रखी। ये हमारे पास सीएम अनाउंसेस केपी असेंबली डिसोल्यूशन जो कि महमूद खान साहब ने की। इसमें हम ये मेन चीज ये देखेंगे कि आर्टिकल्स क्या है और ये कब डिसॉल्व हुई। तो आई महमूद खान चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा पर्सन्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 112 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान डू हियर बाय फॉरवर्ड माय एडवाइस टू फॉर डिसोल्यूशन। यानी ये जो डिसोल्यूशन हुई है केपी असेंबली की ये महमूद खान साहब ने अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 112 की है और ये कब हुई है? ये 18/01/2023 को हुई है। एंड नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास ये है पंजाब पुलिस इंस्पेक्टर जनरल आमिर जुल्फिकार। ये इसमें मेन चीज ये चीज आपने नोट करनी है कि IG पंजाब आजकल कौन है? वो है हमारे पास आमिर जुल्फिकार साहब। ये चीज आपने
इसमें नोट करनी है कि पंजाब का आईजी कौन है, आमिर जुल्फिकार। केपी का हम आगे देखेंगे जो आजकल नया आया हुआ है। नेक्स्ट ये है कि ये ईरान के यूके कंडेम ईरान एग्जीक्यूशन ऑफ डुअल ब्रिटिश ईरानियन सिटीजन अली रजा अकबरी। ये अली रजा अकबरी को जो ईरान में फांसी दी गई है, ये अली रजा अकबरी जो था ये डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर था ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ फॉर्मर ईरानियन प्रेसिडेंट मोहम्मद खत्मी 2019 से 2020 के दरमियान। और इसको इस जुर्म में स्पाइंग फॉर द यूके, यानी ये यूके के लिए जो था स्पाई कर रहा था, जासूसी कर रहा था, उसके पादाश में इसको जो है ना सिक्योर किया गया है। ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये M16 जो यूके की इंटेलिजेंस इदारा है M16 उसके लिए स्पाइंग कर रहा था। और इसने रिपोर्टेडली ये हुआ है कि इसने $2 मिलियन लिए थे उनके लिए। और इसके अलावा ही इज कंटिन्यू टू डिनाई द चार्जेस कि वो मुतवातिर इसको डिनाई कर रहा था। और उसकी जो वाइफ थी मरियम वो करी थी टू कम टू हिज ऑफिस इन तेहरान फॉर ए फाइनल मीटिंग। और ये इसको सेंटेंस दिया है, सेंटेंस टू डेथ बाय रिवोल्यूशनरी कोर्ट इन तेहरान। इसको ये फांसी किसने दी है, ये रिवोल्यूशनरी कोर्ट इन तेहरान जो रिवोल्यूशनरी कोर्ट है उसने दी है। नेक्स्ट देखते हैं, ये है मिस यूनिवर्स आर बोनी गैब्रिएल क्राउन मिस यूनिवर्स। ये जो मिस आर बोनी गैब्रिएल थी ये यूनाइटेड नेशन ये जो 71 मिसेस यूनिवर्स बनी सैटरडे को। और ये गैब्रिएल जो थी ये इससे पहले फर्स्ट फिलिपो अमेरिकन विन मिस यूएसए, ये इससे पहले मिसेस यूएसए का भी अवार्ड ले चुकी हैं। और अभी जो है ना 71 मिस यूनिवर्स का क्राउन भी इसने ले लिया है, मिस रोनी गैब्रिएल। नेक्स्ट देखते हैं, जस्टर आयशा और शेरी रहमान नेम अमंग 50 ओवर 50 इंस्पायरिंग वुमेन फॉर एशिया। ये वुमेन जो एशिया से ली गई हैं 50 टोटल। ये 5 ओवर 50 का मतलब ये है कि ये टोटल जो है ना एशिया पैसिफिक से रीजन से औरतें ली हैं जो कि अपने प्रोफेशनल में एक्सेल कर गई हैं। इसके अलावा ये 50 ओवर 50 का मतलब है कि इनमें टोटल कितनी औरतें हैं, 50 हैं। और 50 नेक्स्ट 50 का मतलब है कि जो 50 साल से ऊपर हैं, 50 साल से ऊपर 50 औरतें एशिया पैसिफिक से जो अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में एक्सेल कर गई हैं, उस लिस्ट में हमारे पास जस्टिस आयशा और शेरी रहमान का नाम भी आया है। ये जो जस्टिस आयशा है ये सुप्रीम कोर्ट जज है। और इसके अलावा क्लाइमेट चेंज सेनेटर शेरी रहमान जो मिनिस्टर है ऑफ क्लाइमेट चेंज की शेरी रहमान, ये फोर्ब्स की 50 ओवर 50 लिस्ट में एशिया से ये भी इंक्लूड की गई है। इसके अलावा रमीज राजा रिसीव कर चुके हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से। इसमें हमें ये याद रखना है कि कौन से प्लेयर ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से हासिल की है, तो वो है हमारे पास रमीज राजा साहब। नेक्स्ट देखते हैं, सिंध में जो बलियाती इलेक्शन हुआ है वो कब हुआ है, वो हमारे पास 15 जनवरी को हुआ है। और उसमें सीट्स की तादाद ये 15 जनवरी में हुआ है। और इसमें सीट्स की तादाद ये है कि टॉप पे हमारे पास पीपल पार्टी है 93, जमात इस्लामी 86, पीटीआई 40, मुत्तहिदा कौमी 1 एंड अदर आर 15। ये उसके रिजल्ट्स हैं। आउट ऑफ 246 235 यूसीज आउट ऑफ 246, यानी टोटल यूसीज कितने हैं कराची में 246। और उसमें कितने पे हुआ है 235 पे। 11 सीटें आफ्टर डिमाइस ऑफ कैंडिडेट्स, ये उनकी वजह से इन पे पोस्टपोन हो चुका था। और 235 पे हुआ आउट ऑफ 246, और जिसका रिजल्ट ये है हमारे पास। इसके बाद सऊदी 4 नेशन कप वाज कमेंडेबल हारून मलिक। ये 4 नेशन फ्रेंडली टूर्नामेंट जो था ये सऊदीया में हुआ था, जो 1-1 से बराबर था। पाकिस्तान और सऊदीया फाइनल में थे, लेकिन कुछ सऊदीया ने विन कर दिया था। और इसमें हमारे पास कोमोरस मुल्क है, मोराकेश मॉरिशस है, पाकिस्तान है और सऊदीया है। ये 4 नेशन कप जो फुटबॉल की टीम है 11 से 19 जनवरी में हुआ था। और इसमें ये आप झंडे देख सकते हैं, सऊदी अरब का है, पाकिस्तान का है, कोमोरस का है और मॉरिशस का है। इस तरह जबरदस्त इंफॉर्मेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब स्टार्ट करा। थैंक्स। एंड नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास है यूक्रेन के इंटीरियर मिनिस्टर का था जो फौत हो गया है इन हेलीकॉप्टर क्रैश। अभी इसमें आपने 2 चीजें याद की हैं कि जनवरी में किसके इंटीरियर मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था जिसमें वो फौत हो गए थे, तो वो थे यूक्रेन के। इसमें इसके साथ 18 पीपल और मरे थे, इसमें 3 बच्चे थे। और ये क्रैश हुआ था नियर किंडर गार्डन आउटसाइड द क्यू ऑन वेडनेसडे। ये इंटीरियर मिनिस्टर किसके थे, यूक्रेन। नेक्स्ट हमारे पास है अब्दुल लतीफ अफरीदी को पेशावर कोर्ट में
کورٹ میں قتل کر دیا گیا تھا. یہ جو تھے یہ پریزیڈنٹ آف سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر بھی تھے اور یہ 79 ایج کی عمر میں قتل ہو گئے پشاور کورٹس میں کچہری میں جس پہ فائر کیا تھا, اور ان کی یہی فیملی میٹرز تھے اور اس کی وجہ سے یہ قتل کیے گئے. ان پہ دراصل ان پہ الزام یہ تھا کہ جو اس سے پہلے ایک جج تھے اینٹی ٹیررزم کوڈ کے آفتاب افریدی مرڈر کیس, اس میں وہ انوالو تھے جس کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا گیا. عبداللطیف افریدی پریزیڈنٹ آف سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر. یہ آبجیکٹو ہمارے پاس ہے. نیوزی لینڈ کی جو پی ایم تھی آرڈن نے اپنے ریزگنیشن اناؤنس کر دیا گیا ہے. یہ 42 ایئر اولڈ کی تھی اور یہ بہت ٹیلنٹڈ پی ایم تھی نیوزی لینڈ کی. آپ نے اس کے کرونا میں اس کے پرفارمنس دیکھ چکے ہیں, نیوز میں آپ نے پڑھا ہوگا. اس کے علاوہ جو نیوزی لینڈ میں ٹیرر مسجد پہ اٹیک ہو گیا تھا اس میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح اس نے جو ہے نا انٹر ہارمنی کا کردار بہت زبردست طریقے سے ادا کیا, اور یہ بوریت کی وجہ سے انہوں نے اپنا ریزگنیشن دیا. اس نے کہا یہ آپ کا بیان پڑھ سکتے ہیں کہ she has no longer had enough in the tank. I am human. We give as much as we can for as long we can and then it's time and for me it's time. یہ اوور ہو چکا ہے. اور اس کے بعد اس کی ریزگنیشن کے بعد لیبر پارٹی نے اپنا نیا پی ایم منتخب کر دیا گیا ہے جو کہ آپ آگے دیکھیں گے کہ وہ کون سے تھے. یہ ہمارے پاس ویتنام کے پریزیڈنٹ ہیں نوین زوان فوک, جس نے بھی ریزائن کیا ہے on the basis of corruption drive that has seen several ministers fired. اور ان کو کرپشن کی وجہ سے جو ہے انہوں نے ریزائن دے چکا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ نوین زوان فوک, اور یہ ویتنام کے پریزیڈنٹ. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ پاکستان رشیا ایگری ٹو کمپلیٹ انرجی کوآپریشن پلان بائی مارچ. یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ 8 سیشن آف پاک رشیا انٹر گورنمنٹل کمیشن جو اسلام آباد میں ہوا تھا, جس میں اکنامک افیئر کے منسٹر سردار ایاز صادق, یہ کون سے منسٹر ہے اکنامک افیئر کے, اور رشین انرجی منسٹر نکولے شولگینو کے درمیان ہوئے تھے. اور یہ 18 سیشن میں یہ ہمارے پاس کنکلوڈ کر گئے تھے, جس میں رشیا ایگری ہو چکا ہے کہ ٹو کمپلیٹ انرجی کوآپریشن پلان پر پاکستان کے ساتھ. اور اس میں آپ نے ان کے انرجی منسٹر کے بیانات بھی دیکھے ہوں گے کہ اس نے کہا ہے کہ اس طرح ہم اور ملکوں کو جس قیمت پہ دے رہے ہیں اسی قیمت میں پاکستان کو بھی دیں گے, اور امریکہ بھی کوئی انٹرفیئر نہیں کر رہا اس میں. اور پاکستان نے یہ جو کمیشن ہے پاک رشیا انٹر گورنمنٹل کا, ان کو کنکلوڈ کیا ہے 20 جنوری 2023 کو ود رشیا کے ساتھ. اس کے علاوہ نیکسٹ یہ ہمارے پاس نیکسٹ سلائیڈ ہے جس میں جنوری 21 میں ڈینش سویڈش فار رائٹ ایکسٹریمسٹ نے جو ہے نا قرآن کو برن کیا تھا ان دی فرنٹ آف ترکی ایمبیسی اسٹاک ہوم میں انڈر دی پروٹیکشن آف سویڈش پولیس. یہ جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں اسلاموفوبیا کے اور جگہ جگہ قرآن کی بے حرمتی کے جو مظاہرے ہو رہے ہیں کہ جو سویڈش پولیس کے انڈر پروٹیکشن میں ہوا تھا. اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ بندہ جو ہے قرآن لا رہا ہے اور دوسری جگہ پہ یہ دفنا رہا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے بیس پہ یہ چیزیں کر رہے ہیں, لیکن یہ چیزیں بالکل غلط ہیں اور ان کو اس چیز کو سمجھنا پڑے گا. اور اس کے علاوہ جو ڈچ پولیٹیشین اور لیڈر اسلاموفوبک گروپ بگاڑے ایڈون ویگنشیلڈ ہے, اس نے بھی قرآن کے صفحے پڑھے ہیں. تو یہ جو بہت افسوس کی بات ہے اور اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے, اور دنیا کو جلد سے جلد اس کے بارے میں کچھ نظر ثانی کرنی چاہیے اور فریڈم آف ایکسپریشن کے لبادے میں اس طرح کے کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے. سو لیٹس نیکسٹ. اور یہ واقعہ کب ہوا ہے ہمارے پاس؟ یہ 21 جنوری 2023 کو ہوا ہے ہمارے پاس. نیکسٹ ہمارے پاس یہ ہے 20 جنوری کو پی سی بی نے پی ایس ایل اناؤنس کیا تھا کہ ابھی اس ڈیٹ کو ہوگی, تو جس میں پہلا مقابلہ جو ہے نا وہ ملتان سلطان اور اس کے علاوہ لاہور قلندر کا ہوگا 13 فروری 2023 کو ملتان میں. اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ لاہور قلندر ہے ڈیفیٹڈ ڈیفینڈنگ چیمپئن ملتان سلطان ایٹ قذافی اسٹیڈیم بائی 42 رن 2022 میں جو لاہور قلندر نے فائنل جیتا تھا اس میں 42 رن سے اس نے ملتان سلطان کو شکست دی تھی. اور یہ سپر لیگ پاکستان سپر لیگ 8 ایڈیشن ہے. کب سے سٹارٹ ہو رہی ہے؟ 18 سے سٹارٹ ہو رہی ہے. 2020 کا چیمپئن کون ہے؟ لاہور قلندر. یہ چیزیں آپ نے ضروریات. ابھی یہ سی ایم اور گورنر کے بارے میں ہے پنجاب کے. تو پنجاب کے گورنر صاحب یہ ہیں داڑھی والے محمد بلیغ الرحمان, اور سی ایم جو ہے نا وہ محسن نقوی ہیں جو کہ پرویز الہی کے رشتہ دار بھی ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے فارن منسٹر ہیں بلاول بھٹو, وہ ای سی او کی کانفرنس میں گئے تھے 26 میٹنگ آف ای سی او. یہ بات یاد کرنی جو کہ تاشکند ازبکستان میں ہے. یہ جو تاشکند ہے یہ ازبکستان کا دارالحکومت ہے. اور یہ ای سی او کی کون سی میٹنگ میں گئے تھے؟ 26ویں میٹنگ آف ای سی او یعنی اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن. اور اس کا کانفرنس کا تھیم کیا تھا ای سی او 26 کا؟ ایئر آف اسٹرینتھنگ کنیکٹیویٹی. ایئر آف اسٹرینتھنگ کنیکٹیویٹی یہ اس کا تھیم تھا 2023 کا. نیکسٹ دیکھتے ہیں. اس میں ابھی ہمارے پاس یہ دو چیزیں
चीजें हैं। इस पिक्चर में हमारे पास ये है कि इसमें सिर्फ हम PF के कमांडर जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है उसका नाम याद रखेंगे तो वो हमारे पास है एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू। ये चीफ ऑफ एयर स्टाफ है पाकिस्तान एयर फोर्स के। इसका नाम क्या है? जहीर अहमद बाबर सिद्धू। ये है हमारे पास पाकिस्तान के एयर फोर्स के चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू इनका नाम है। और नेवी का अमजद नियाजी है। पाकिस्तान आर्मी का सैयद मुनीर जनरल मुनीर साहब हैं। इसके बाद UAE वेल ऑलवेज स्टैंड बाय पाकिस्तान जो UAE की प्रेसिडेंट थे शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान। इन्होंने रहीम यार खान में पाकिस्तान सिटी में जो है पाकिस्तान किया, वहाँ इन्होंने विजिट किया। और ये जो है हमारे पास 25 जनवरी को इन्होंने विजिट किया। इसके अलावा वहाँ ये शहबाज शरीफ से मिले। और ये दरअसल ये अभी आप सोचेंगे कि ये रहीम यार खान क्यों आए, तो ये रहीम यार खान के पास ये चोलिस्तान है जिसमें ये शिकार करते हैं। तो ये शिकार के लिए भी वहाँ आए। प्रेसिडेंट साहब जो है ना शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान। और इसी तरह की जबरदस्त इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब स्टार्ट करा। ये अभी हमारे पास पाक ईरान बॉर्डर कॉरिडोर है जो कि ओपन हुआ 4 साल बाद। ये बंद हुआ था कोरोना के टाइम पे और इसके बाद ये जो है 26 जनवरी 2030 को ओपन हुआ के। और ये पाकिस्तान और ईरान के जो ऑफिशियल से उनकी मीटिंग के बाद हुआ। इट इज ए पर्टिनेंट टू नोट दैट द सिटीजन ऑफ बोथ कंट्री विजिट देयर रिलेटिव कॉरिडोर। और ये जो दो ममालिक के दरमियान के लोग हैं एक दूसरे के रिश्तेदारों से मिलने के लिए ये कॉरिडोर खोला गया है, पाक ईरान कॉरिडोर, जो कि पिछले 4 साल से बंद। ये जून 26 को ओपन कर दिया गया है। ये हमारे पास है फेडरल मिनिस्टर फॉर पॉवर्टी एलिविएशन एंड सोसाइटी सेफ्टी एंड सोशल सेफ्टी। इसमें दरअसल ये फीमेल आप देख सकते हैं, इसका नाम है शाजिया मरी। ये क्या है? ये फेडरल मिनिस्टर है फॉर पॉवर्टी एलिविएशन एंड सोशल सेफ्टी। तो इसमें हमको इसका नाम याद रखना है कि शाजिया मरी जो है ना वो हमारे पास फेडरल मिनिस्टर फॉर पॉवर्टी एलिविएशन एंड सोशल सेफ्टी की मिनिस्टर है। नेक्स्ट हमारे पास ये आपने देख लिया कि जो प्रीवियस PM थी न्यूजीलैंड की, उसकी जेसिंडा आर्डन के इस्तीफे की वजह से हमारे पास न्यू CM जो है ना न्यूजीलैंड के वो क्रिस हिप्किन जो है ना बन गए हैं। ये 44 ईयर ओल्ड सीनियर पॉलिटिशियन हैं। ये लेबर पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और ये 41वीं प्राइम मिनिस्टर है न्यूजीलैंड। और इनके पार्टी का क्या नाम है? लेबर पार्टी। और ये 44 ईयर ओल्ड है और इनका नाम क्या है? क्रिस हिप्किन। ये WHO के चीफ हैं टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेसस। ये आपने याद रखना है, ये भी ऑब्जेक्टिव में किसी वक्त आ सकता है कि WHO चीफ के क्या नाम है, तो हमारे पास है टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयेसस। नेक्स्ट हमारे पास है कि पाकिस्तान नेम टर्किश प्रेसिडेंट फॉर द नोबेल पीस प्राइज। ये इसमें इस तरह आ सकता है कि पाकिस्तान ने किस प्रेसिडेंट को नोबेल प्राइज के लिए जो है अनाउंस किया था। अनाउंस नहीं, यानी ये हमारे सेनेट के चेयरमैन जो था साजिद सजरानी साहब ने जो नोबेल प्राइज की अथॉरिटी है उसको खत लिखा था कि आप 2023 का नोबेल प्राइज जो है वो तैयब उर्दुगान को दें। और क्यों दें? क्योंकि तैयब उर्दुगान ने जो रशिया यूक्रेन वार थी उसमें बहुत ज्यादा कलीदी किरदार अदा किया है और बहुत सारे नुकसानात से इन दोनों ममालिक को बचाया है और इनके दरमियान हार्मनी और पीस के लिए बहुत ज्यादा कोशिशें की है तैयब उर्दुगान ने। तो इस कोशिश के रिगार्ड में जो साजिद सजरानी साहब थे उन्होंने लेटर लिखा था जो नोबेल पीस प्राइज ऑर्गेनाइजेशन है कि आप प्लीज इनको नोबेल प्राइज दे दें इन खिदमत की वजह से। तो अभी ये कौन से टर्की के सदर हैं? रजब तैयब उर्दुगान। ये 12th एंड करंट प्रेसिडेंट है टर्की के 2014 से ये टर्की के 12वें प्रेसिडेंट हैं। और इससे पहले ये टर्की के PM थे 2003 से 2014 तक और मेयर ऑफ इस्तांबुल भी रह चुके हैं 1994 से 98 तक। और ये 1954 में पैदा हुए, 2014 में टर्की के प्रेसिडेंट बने। इनके पार्टी का नाम जस्टिस एंड गवर्नमेंट पार्टी है और ये इसके ग्रैंड चिल्ड्रन है केनन एबूक बरख्तियार अहमद आकिफ अल बयार। और इनके पास पाकिस्तान का निशानी पाकिस्तान जो सबसे बड़ा अवार्ड है पाकिस्तान है वो इनके पास है अवार्ड में। नेक्स्ट हमारे पास है कि 2022 में 20 पुलिस मैन एम्बेरस मार्टायरडोम पंजाब। 2022 में पंजाब में टोटल कितने पुलिस वाले शहीद हुए, तो वो हमारे पास है 20। नेक्स्ट हमारे पास है कि कौन सी कंट्री विल बिल्ड 140 किलोमीटर लॉन्ग स्टील वॉल अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ टर्की। तुर्की के बॉर्डर के साथ, यानी कौन सी कंट्री है जो टर्की के साथ उसका बॉर्डर है और वो 140 किलोमीटर लॉन्ग स्टील वॉल बनाने का सोच रहे हैं। और ये क्यों? तो वो कंट्री हमारे पास है
ग्रीक। ये ग्रीक देख सकते हैं, इसका ये टर्की के साथ बॉर्डर है और ये 140 किलोमीटर स्टील वॉल दीवार बना रहे हैं। किस वजह से? क्योंकि ये कह रहे हैं कि टर्की से बहुत ज्यादा पनागजीन जो है ना वो हमारे मुल्कों में एंटर हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है और रिसोर्सेज पे प्रेशर बिल्ट हो रहा है, जिसकी वजह से हम इनकी ये गैर कानूनी जो मुतासरीन और पनागजीन आ रहे हैं इसको रोकने के लिए ग्रीक ये 140 किलोमीटर स्टील वॉल बना रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है कि पाकिस्तान अपना 7वां पॉपुलेशन हाउसिंग डिजिटल सेंसस बनाने जा रहा है। तो सबसे पहले सेंसस पाकिस्तान में कब हुआ था? तो वो हमारे पास 1951 से पहले हुआ था। दी सेकंड इन 1961 एंड दी थर्ड वाज हेल्ड इन 1972 इंस्टेड ऑफ 1971 ड्यू टू द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। यानी जो तीसरा था वो हमारे पास 1972 में हुआ था बजाय 1971 में, क्योंकि मुल्कों में सियासी एनवायरनमेंट ठीक नहीं था और वार की वजह, और इस वजह से पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये मर्दमशुमारी कंडक्ट करती है। पाकिस्तान कौन सा इदारा है? ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। इसी वजह से उन्होंने ट्यूसडे को नोटिफाइड किया है कि वो स्टार्ट कर रहे हैं 7 पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस इन द कंट्री फ्रॉम मार्च 1 से वो पाकिस्तान में 7वां मर्दमशुमारी स्टार्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में। और इसमें जबरदस्त बात ये है कि इस बार वो ये डिजिटल कर रहे हैं, और इसमें सबसे जबरदस्त बात ये है कि इस बार ये जो मर्दमशुमारी हो रही है ये ऑन द बेसिस ऑफ डिजिटल बेसिस पे हो रही है पाकिस्तान में। फर्स्ट एवर डिजिटल सेंसस इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट हमारे पास है ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में है, जिसने क्लब अल नसर के साथ मुआहदा किया है, 2.5 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट किया है, और इसकी डील जो है ना वो 200 मिलियन यूरो की है। इसमें 2-3 चीजें याद करनी है कि रोनाल्डो ने किसके साथ मुआहदा किया? अल नसर क्लब के साथ किया। कितने में किया? 200 मिलियन यूरो में किया। और इसके अलावा क्रिस्टियानो का निक नेम क्या है? तो क्रिस्टियानो का निक नेम हमारे पास है द मीनिंग ऑफ ई बिचू। ई बिचू जो है ना ये निक नेम है क्रिस्टियानो का, जिसका मतलब है इंग्लिश में द बग डिस्ट्रॉयर। नेक्स्ट हमारे पास है कि बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसने जीता? तो वो हमारे पास है बेथ मीट। बेथ मीट ने हमारे पास बीबीसी 2022 का अवार्ड जीता पर्सनालिटी ऑफ ईयर 2022। तो ये बेथ मीट जो थी ये इंग्लैंड की फुटबॉलर है। सेनेट स्टार्ट करते हैं। ये रिपोर्ट है जर्नलिस्ट के बारे में कि पिछले 20 साल में कितने जर्नलिस्ट मारे गए। तो पिछले 20 साल में अकॉर्डिंग टू दी RSF रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स 2003 से 2022 में 1668 जर्नलिस्ट मारे गए हैं। और ये साथ में देख सकते हैं कि 2022 में किन किन कंट्रीज में मारे गए: यूक्रेन, सीरिया, ईरान, हैटी, मेक्सिको और इसी तरह बहुत सारे मुल्क हैं, कजाकिस्तान। तो ये आप देख सकते हैं कि 68 जर्नलिस्ट किल इन 20 ईयर्स 2003 से 2022 के दौरान। इसके अलावा ये मेसी के बारे में है कि 2022 का बेस्ट प्लेयर अवार्ड किसको दिया गया है? तो वो मेसी को दिया गया है। द यूनाइटेड नेशन जर्नलिज्म एट इट्स 75 सेशन इन मार्च 2021 डिक्लेयर। ये जो यूनाइटेड नेशन जर्नलिस्ट लीग का 75 सेशन होगा मार्च 2023। तो ये हमारे पास जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 को करार दिया गया। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने क्या क्या करार दिया गया है? तो ये इसको मिलेट का साल करार दिया गया है अकॉर्डिंग टू दी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। नेक्स्ट MCQ है विच कंट्री टॉप द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन 2023? जापान। तो 2023 में सबसे पावरफुल पासपोर्ट जो है वो हमारे पास जापान का है, और जापान का जो पासपोर्ट है वो मोस्ट फेवरेबल पासपोर्ट है दुनिया में अकॉर्डिंग टू दी लेटेस्ट हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। और ये रिपोर्ट किसकी है? ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की है। तो जापान का पासपोर्ट मोस्ट फेवरेबल पासपोर्ट है दुनिया में। और लास्ट रैंक 109 नंबर जो सबसे लास्ट है उस पे अफगानिस्तान का है, जिसमें सिर्फ 27 मुल्कों पे आप जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड द सेफेस्ट सिटी फॉर सोलो वुमेन ट्रेवल। तो औरतों के लिए सबसे सेफेस्ट सिटी कौन सी है? तो वो हमारे पास है मदीना रैंक सेफेस्ट सिटी इन वर्ल्ड फॉर सोलो वुमेन ट्रेवलर। और ये सर्वे किसने किया है? ये किया है श्योर माई ट्रिप ने। सेकंड नंबर पे है चियांग मी थाईलैंड, थर्ड पे है दुबई जो सेफेस्ट है फॉर सोलो वुमेन फीमेल ट्रेवल। एंड दी लीस्ट सेफ और सबसे जो लीस्ट सेफ है औरतों के लिए वो पेरिस फ्रांस का है और जकार्ता इंडोनेशिया का है। ये नेक्स्ट हमारे पास है कि बेस्ट सिटी 2023 में कौन सी है? तो वो हमारे पास लंदन है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बेस्ट सिटी रिपोर्ट 2023 लंदन हैज बीन रैंक्ड द बेस्ट सिटी इन वर्ल्ड फॉर 2023 टू लिव, वर्क, इन्वेस्ट एंड विजिट। सेकंड पे पेरिस है। दुबई रैंक फर्स्ट इन एशिया
एशिया एंड फिफ्थ वर्ल्ड। दुबई जो है ना हमारे पास एशिया में सबसे बेस्ट टू लिव वर्क इन्वेस्ट के लिए दुबई हमारे पास एशिया में पहले पे है और दुनिया में पे है। और पूरी दुनिया में कौन सा है बेस्ट है टू लिव वर्क इन्वेस्ट एंड विजिट, वो लंदन है। सेकंड पे पेरिस है हमारे पास। एंड दी नेक्स्ट इज हु यानी रिसेंटली सिख कौन सी वुमेन जो इलेक्ट हुई है जज यूएस में, तो वो हमारे पास इंडियन ओरिजिन मनप्रीत मोनिका है। इसमें आपने इसका नाम जरूर याद करना है कि जज मनप्रीत मोनिका सिंह, कंट्री सिविल वर्क लॉ। ये आप इसका एक पेज भी पढ़ सकते हैं। इनका मनप्रीत है जो कि यूएस में फर्स्ट वुमेन सिख जज बन गई है 2023 9 जनवरी को। एंड नेक्स्ट देख वो कौन सा मुल्क था जिसने अपना मैरिज लॉ में चेंजिंग की, रोनाल्डो की, तो वो हमारे पास सऊदी अरब है। ये आप मुझे हमें पता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो गर्लफ्रेंड है जॉर्जिया रोड्रिगेज, वो असल में उसकी वाइफ है नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड है। और सऊदीया का लॉ ये है कि सऊदीया में फॉरबिडन है टू स्टे इन द सेम हाउस विदाउट मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। इस रोनाल्डो की वजह से उन्होंने अपने मैरिज लॉ में जो है ना चेंजिंग कर दिया सऊदी अरब ने ड्यू टू दी रोनाल्डो। ये हमारे पास नेक्स्ट सब्जेक्ट है। ब्लेंडा क्लार्क जो है ना ये दुनिया की पहली वुमेन क्रिकेटर बन गई है। स्टेटू कास्ट ए सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में जो ब्रॉन्ज से बना हुआ है और ये ब्लेंडा क्लार्क का है। और ये कहाँ पे लगा हुआ? सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। ये वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर बन गई है जिसका स्टेटू बनाया गया है। ये हमारे पास ब्लेंडा क्लार्क। नेक्स्ट हमारे पास है तालिबान एंड चाइना फॉर्म एग्री अफगानिस्तान ऑयल एक्सट्रैक्शन डील, यानी ये 25 साल के लिए ये एग्रीमेंट किया गया है बिटवीन अफगानिस्तान एंड चाइना फॉर्म, जो कि 25 साल के लिए है। और ये कॉन्ट्रैक्ट ऑयल के एक्सट्रैक्शन के लिए किया है आमू दरिया बेसन के पास। और ये तालिबान का फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल एनर्जी एक्सट्रैक्शन डील है सिंस दी ग्रुप टू कंट्रोल ऑफ द कंट्री 2021, जो 15 अगस्त 2021 को तालिबान आ गए थे। इसके बाद ये उनका सबसे बड़ी डील है पहली 25 साल की चाइना के साथ। और ये किसने बताया? ये हमें तालिबान स्पोक्स पर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि जो गेंस की कंपनी है केपिक, उसने 25 साल के लिए ऑयल एक्सट्रैक्शन एग्रीमेंट किया नियर टू द आमू दरिया बेसन अफगानिस्तान तालिबान गवर्नमेंट के साथ 25 साल के लिए ऑयल एक्सट्रैक्शन डील है। नेक्स्ट हमारे पास है कि प्रिंस हैरी ने बुक लिखी है। कौन सी बुक लिखी है ये आप देख सकते हैं। ये स्पेयर है जो पब्लिश हुई है 10 जनवरी 2000 को। ये बेटे हैं किंग चार्ल्स III के, यंगर सन है। इसने कौन सी बुक लिखी है 2023 में जिसने हंगामा मचाया हुआ है, जिसमें सीक्रेट्स शेयर किए गए हैं अकॉर्डिंग रिलेटेड टू यूके गवर्नमेंट एंड इट्स क्वीन। एंड ये क्योंकि खुद उसी बादशाह के खानदान से है प्रिंस हैरी। और ये इसकी बुक है स्पेयर 2023 में जो लिखी पब्लिश की गई है। नेक्स्ट हमारे पास है इंडियन टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा 36 ईयर ओल्ड है कंफर्म हर रिटायरमेंट फॉर प्रोफेशनल। ये इन्होंने जो 36 साल की सानिया मिर्जा, इसने किस स्पोर्ट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया गया है, तो वो हमारे पास है टेनिस से इन्होंने जो है रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया गया है। और ये वाइफ है शुएब मलिक साहब की और इनका स्पोर्ट का ताल्लुक है टेनिस के साथ। इसी तरह जबरदस्त इंफॉर्मेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब स्टार्ट करा। पाकिस्तान सिक्योर्ड विच रैंक इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में पाकिस्तान ने कौन सा रैंक हासिल किया? पाकिस्तान के पासपोर्ट ने आउट ऑफ 109, तो पाकिस्तान ने 2023 में पासपोर्ट की रैंकिंग में 109 में से 106 रैंक हासिल कर दिया गया है, जिसपे 32 डेस्टिनेशन पे हम जा सकते हैं। और 2022 में क्या था? 108 था। पाकिस्तानी पासपोर्ट फॉर वर्स्ट पासपोर्ट फॉर द इंटरनेशनल ट्रेवल। बड़ी अफसोस की बात, हिंदी पासपोर्ट इंडेक्स पब्लिश आफ्टर एवरी 3 मंथ्स। हिंदी पासपोर्ट 3 मंथ्स के और Q1 रिपोर्ट जनवरी टू मार्च 2023। अभी आप साथ में देख सकते हैं हिंदी पासपोर्ट इंडेक्स 2022। बॉटम 5 कंट्रीज जो है उसमें था अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, पाकिस्तान और यमन। बहुत अफसोस की बात है। और रैंक 1 जो था वो जापान का था एंड सिंगापुर विद ए वीजा फ्री स्कोर ऑफ 192, जबरदस्त। एंड रैंक 2 में जो था वो जर्मनी एंड साउथ कोरिया था। ब्रेक नेशनल रैंकिंग में ब्राजील 20वें पे, रशिया 46 पे, अफ्रीका 51 पे, चाइना 64 पे, इंडिया 84। इंडिया रैंक जो थी वो 2020 में 82 थी, 2021 में 90 थी और 2022 में 84 थी। यह आप साथ में पिक्चर में देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि पाकिस्तान और टर्किश वारशिप है रिसेंटली कंडक्टेड नेवल ड्रिल इन अरेबियन। उनका नाम क्या था? तो उसका नाम था तुर्गुट्रेस 7। PN and Turkish ship participated in bilateral exercise तुर्गुट्रेस 7 in North Arabian Sea। ये एक्सरसाइज हुई थी पाकिस्तान और टर्किश नेवी की। इसका नाम क्या था? तुर्गुट्रेस 7। और इसमें टर्किश नेवी की शिप कौन सी थी हमारे पास? वो थी TCG बुर्गाज़ादा, रिसेंटली विजिटेड कराची पोर्ट। ये उनकी जो थी शिप थी, नेवी शिप थी बुर्गाज़ादा। और इस एक्सरसाइज का नाम क्या था? तुर्गुट्रेस 7। नेक्स्ट हमारे पास है फेमस 50-50 कॉमेडियन माजिद जहांगीरी। माजिद जहांगीरी साहब जो
थे ना, ये कॉमेडियन थे जो 11 जनवरी 2023 को फौत हो चुके हैं। ये 55 का ड्रामा था जो कि बहुत जबरदस्त और फनी था, और ये साथ में पीपल पार्टी लीडर हैं जो इनको 4 लाख का चेक भी दिया की पिक्चर्स के साथ कॉमेडियन माजिद जंगी के पास। सो लेट्स नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। टोटल रिजर्व ऑफ पाकिस्तान इन स्टेट बैंक इन जनवरी 2023 में टोटल रिजर्व कितने थे पाकिस्तान स्टेट बैंक के पास? तो वो थे 5.6 बिलियन अकॉर्डिंग टू डॉन न्यूज़पेपर। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हिट एन 8-year low 5.576 बिलियन ड्यूरिंग वीक एंडेड एट दिसंबर 2022। फाइनेंस मिनिस्टर हमारे पास कौन है? साकदार साहब है। स्टेट बैंक के गवर्नर हमारे पास कौन है? मिस्टर जमील अहमद। और ये आप साथ में देख सकते हैं ग्राफ में कि 2014 मार्च में गया था, 15-16 में ये रिजर्व कितने हैं? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितने थे? दिसंबर 2022 में 5.8, जून 2022 में 9.8, और इसमें सबसे ज्यादा हमारे पास जून 2016 में थे 18.1। तो ये हालत है मुल्क की इकॉनमी का। और गवर्नमेंट अपॉइंट जमील अहमद एज गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 5 स्टेट गवर्नर है। अभी रिसेंटली किस प्रोविंस ने जो है ना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, एंटी मोबाइल ऐप टू काउंटर द मोबाइल थेफ्ट, यानी चोरी हुई मोबाइल को किस तरह रोकेंगे या जो मोबाइल चोर जाए उसको किस तरह हम आइडेंटिफाई करेंगे। केपी प्रोविंस ने एक ऐप निकाला गया है, एप्लीकेशन है जो कर्ब करती है इंसिडेंट ऑफ मोबाइल थेफ्ट इन द सिटीज। यूजर विल बी एबल टू फाइंड एंड सर्च ए नंबर व्हाइल बाइंग ए मोबाइल फोन एंड ऐप विल वेरीफाई इफ द बीइंग सोल्ड लीगली और स्टोलन। तो ये आपको बताती है कि आप जो मोबाइल खरीद रहे हैं वो चोरी हुआ है या स्टोलन किया गया है या ठीक है। और तो ये ऐप किस प्रोविंस ने लॉन्च की? मोबाइल थेफ्ट। तो ये लॉन्च किया है केपी प्रोविंस ने। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है। इस स्लाइड में हम मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2030 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जर्मनी ने डिफीट किया बेल्जियम को और विन किया मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023। जर्मनी नाउ हैज वॉन द वर्ल्ड कप 3 times, फर्स्ट 2002 एंड सेकंड 2006 एंड द थर्ड इज 2023। और ये फाइनल था हमारे पास इंडिया में। ये सारा टूर्नामेंट जो था इंडिया में था। 13 से 29 जनवरी में। वेन्यू इसका कहाँ था? ये फाइनल का कलिंगा स्टेडियम, बरसेका मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। फाइनल पोजीशन में जर्मनी और बेल्जियम थी, जिसमें जर्मनी ने बेल्जियम को शिकस्त दी और चैंपियन बन गया तीसरी दफा। नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारे पास 15 ब्रिक्स समिट्स जो होगी हमारे पास हेड इन डरबन साउथ अफ्रीका इन अगस्त 2023 में होगी। ब्रिक्स जो है ये किन किन ममालिक में है? इसमें ब्राजील है, रशिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। ब्रिक जो था वो ये 2006 में बना था हमारे पास। इसके अलावा 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका आ गया। ये पहला ब्रिक था जिसकी साउथ अफ्रीका के आने के बाद ये हमारे पास ब्रिक्स बन गया। और ये फर्स्ट टाइम इसके लीडर रशिया 2009 में मिले थे। ये आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। इंडिया है, ब्राजील, साउथ अफ्रीका है, रशिया है और चाइना है। और 15 ब्रिक्स समिट होगी अगस्त 2023 साउथ अफ्रीका डरबन। नेक्स्ट हमारे पास है आईसीसी अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2023 वॉन बाय 2023 का वर्ल्ड कप किसने था? अंडर 19 20 वर्ल्ड, तो वो हमारे पास सकते हैं इंडिया है। इंडिया ने ये फर्स्ट टाइम ये वर्ल्ड कप हुआ और फर्स्ट टाइम इनॉग्रेल चैंपियन जो है ना वो हमारे पास इंडिया बन गया। सेमीफाइनल में इंडिया बीट न्यूजीलैंड बाय 8 विकेट एंड इंग्लैंड बीट ऑस्ट्रेलिया बाय 3 विकेट्स। द फाइनल टुक प्लेस 29 को फाइनल, जिसमें इंडिया ने बीट किया इंग्लैंड को 7 रन से और इस वर्ल्ड कप का पहला चैंपियन बन गया, क्योंकि ये वर्ल्ड कप पहली दफा हो रहा था। इसके अलावा ये 20 के कप 2023 जो हुआ है, जो हम न्यूज में डेली देखते हैं डांस में, तो ये किसके मेमोरी में बना है? ये कर्नल फतेह शेर खान के मेमोरी में 2023 में 20 के कप 2023 इनके मेमोरी में बनाया गया है। कर्नल फतेह शेर खान। वुमेन सिंगल का विनर कौन है ऑस्ट्रेलिया ओपन में 2023 में? तो वो हमारे पास है एरिना सबालेंका हमारे पास विनर है वुमेन सिंगल टाइटल इन ऑस्ट्रेलिया ओपन में। ऑस्ट्रेलिया ओपन एडिशन 111 एडिशन था, 55th इन ओपन एरा मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था। इसके अलावा और फाइनल 29 जनवरी हुआ था। और मेन सिंगल टाइटल में विनर हमारे पास थे नोवाक डिजोकोविच सर्बिया वाले। नोवाक डिजोकोविच जो थे ये हमारे पास मेंस में है और फीमेल में हमारे पास हरियाणा सबालेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का फाइनल विन किया है। ये आप देख सकते हैं डिजोकोविच 10th ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये 10th ऑस्ट्रेलिया ओपन का फाइनल इनका है। और इसके अपोजिट कौन थे? तो इसका जो फाइनल था इसमें हम इसके पास थे स्टीफानोस टिट्सिपास, इसके अपोनेंट थे, इसमें इन्होंने उनको हरा दिया था। और ये नीचे इसके सिंगल्स के रिजल्ट हैं नोवाक डिजोकोविच के फ्रेंच ओपन इन्होंने 2021 और इसी तरह ये विंबलडन जो है ना 2011, 14, 15, 18 और ये सारे इसके सिंगल्स के टाइटल्स हैं डिजोकोविच के। इसके बाद ये हमारे पास पेशावर अटैक्स की पिक्चर्स हैं, जो पेशावर में सुसाइड अटैक हुआ था मस्जिद में पुलिस लाइन, जिसमें 59 लोग किल हो गए थे मौके पे और 150 इंजर्ड हो गए थे। ये 30 जनवरी 2023 में मंडे
के दिन हुआ था। तो ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये सुसाइड अटैक था जो कि पुलिस लाइन में हुआ है। 59 लोग मर गए थे, 150 इंजर्ड हो गए थे और 30 जनवरी को ये सुसाइड अटैक पेशावर में हुआ था। ये हमारे पास 2022 का फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप है, जिसका करंट चैंपियन अभी हमारे पास कौन है? स्पेन है, which won its second title at the 2022 टूर्नामेंट इन इंडिया। और ये टूर्नामेंट भी इंडिया में हुआ था, फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप। और ये इसका चैंपियन जो है हमारे पास स्पेन है। इसने कोलंबिया को हराया था 1-0 से 2022। और ये फाइनल हुआ था पटेल स्टेडियम इन नेवी मुंबई ऑन संडे, जिसमें स्पेन ने स्वीडन कोलंबिया को हरा के चैंपियन बन गया। इस तरह की जबरदस्त इंफॉर्मेशन के लिए स्टार्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। एंड दी नेक्स्ट अपडेट 30 जनवरी 2023 को पाकिस्तान एंड टर्क फोर्सेस लॉन्च ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल अतातुर्क 12। तो ये किस ममालिक के दरमियान हुआ था? तो ये पाकिस्तान और टर्किश के दरमियान हुआ था। ये पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ये ड्रिल स्टार्ट हुए थे, मिलिट्री ड्रिल अतातुर्क 12 2023 30 जनवरी को। और इसकी लोकेशन तरबेला है KPK में। तो ये पाकिस्तान और टर्किश के मिलिट्री ड्रिल्स हैं अतातुर्क 12, जो कि तरबेला में 30 जनवरी से स्टार्ट हो गए हैं। इसके बाद हमारे पास है कीनिया कमांडर कीनिया नेवी मेजर जनरल जिमसन लोंगिरो मोटाई ने विजिट किया है पाकिस्तान 31 जनवरी को इस्लामाबाद और मिले हैं अमजद खान नियाजी साहब से, जो कि चीफ ऑफ नेवी स्टाफ है। इनका ये दौरा कब हुआ? ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि कीनिया के नेवी कमांडर मेजर जनरल जिमसन लोंगिरो मोटाई ने कब दौरा किया पाकिस्तान का? तो हमारे पास 31 जनवरी 2023 है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये भी फीमेल्स के अचीवमेंट्स के बारे में, इसको आपने गौर से याद करना है कि किस तरह दुनिया में फर्स्ट फीमेल क्या से क्या। तो ये मनुला रूका बूटनी जो है ये बनी इक्वाटोरियल गिनी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास नीला रुकावटी है जो कि इक्वाटोर की फर्स्ट मेल प्राइम मिनिस्टर बनी। हमारे पास फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली है जॉर्जिया मिलोनी ये है, ये इटली की पहली PM बनी। नेक्स्ट हमारे पास है स्लोवेनिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, हमारे पास ताशा पिकमोसर बनी, जो ये है हमारे पास। और पीरो की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट हमारे पास दीना बुटोरट ये बनी हमारे पास। इसके बाद ये कुछ इंफॉर्मेशन है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, क्योंकि आजकल एनर्जी क्राइसिस की वजह से उसकी काफी डिमांड बढ़ रही है और लोग शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम हाइड्रो पावर सोलर पावर। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है हमारे पास इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। ये 30 नवंबर 2012 को बनी और फाउंडेड एट पेरिस फ्रांस में बनी। और इसमें इसका पर्पस क्या है? ब्रिंग टुगेदर ग्रुप ऑफ टू इंडोर्स क्लीन एनर्जी सस्टेनेबल एनवायरनमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड क्लाइमेट। हेडक्वार्टर इसका हरियाणा इंडिया में है। रीजन सर्व ऑल मेंबर ऑफ UN है। फील्ड इसका रिन्यूएबल एनर्जी में है। मेंबरशिप 87 मेंबर ने अभी तक इसको ज्वाइन किया है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी फ्रेंच इंग्लिश है। और इसके डायरेक्टर जनरल है अजय माथु इसके डायरेक्टर जनरल है। और अभी इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि द एरिया ऑफ अर्थ लोकेटेड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड ट्रॉपिकल जोन। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान एरिया है इसको हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। और ये वर्ल्ड का वो एरिया है जो मोस्टली सनी है या मोर डायरेक्टेड एक्सपोजर है और ये सन से ज्यादा एक्सपोज है। इसके अलावा द सनीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आर द अफ्रीकन कंटिनेंट रेंजिंग फ्रॉम सोमालिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका ईस्ट टू नाइजर वेस्ट एंड नॉर्थ टू इजिप्ट। इंडिया एंड फ्रांस लॉन्च इंडिया और फ्रांस ने ISA को लॉन्च किया टू बूस्ट द सोलर एनर्जी इन डेवलपिंग कंट्रीज। इसके अलावा पाकिस्तान कुछ इंफॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू द सोलर एनर्जी एंड सोलर पैनल्स। और क्या पाकिस्तान ने ISA को ज्वाइन किया है? तो अभी तक पाकिस्तान और ज्वाइन नहीं किया गया। और पाकिस्तान क्या सोलर पैनल प्रोड्यूस करता है? तो गवर्नमेंट हैज टारगेटेड इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी मेनली सोलर एंड विंड पावर बाय 20% रिन्यूएबल एनर्जी का जो है शेयर है वो 20% बाय 2025 तक होगा, 30% 2030 तक होगा। और एज कम्पेयर टू अभी हम अपनी जरूरत के सिर्फ 5% सोलर पैनल थोड़ी प्रेजेंट पाकिस्तान। और पाकिस्तान अपने ज्यादातर इम्पोर्ट कहाँ से करता है सोलर पैनल्स की? तो वो करता है चाइना से। ये हमारे पास कुछ जबरदस्त इंफॉर्मेशन थी जनवरी 2023 के बारे में। तो इसमें हमें बहुत सारी मेहनत लगी। सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर सच अमेजिंग वीडियोस एंड थैंक यू वेरी मच। एंड द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव द वर्ल्ड फर्स्ट रोबोट लायर इज सेट टू टेक ऑन इट्स फर्स्ट कोर्ट केस फरवरी 2023। वर्ल्ड का फर्स्ट लायर रोबोट जो है वो हमारे पास पहले 1 फरवरी 2023 से काम करेगा और इसको बनाए और ये काम करता है अकॉर्डिंग टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे काम करेगा और ये डिफेंड करेगा ह्यूमन क्लाइंट को US कोर्ट्स में। और इसको डेवलप किया गया है डू नॉट पे कंपनी। ये फर्स्ट वकील होगा जो अपने क्लाइंट को कोर्ट डिफेंड करेगा पहले 1 फरवरी 2000। एंड द नेक्स्ट इज
पाकिस्तान फर्स्ट वुमेन ओनली बस सर्विस लॉन्च इन द सिटी। पाकिस्तान का पहला पिंक बस सर्विस जो है ना वो कराची फर्स्ट फेब्रुअरी से लॉन्च हो रहा है। जिसमें दो चीजें हैं कि पिंक बस कहाँ लॉन्च हो रही है, कराची में, सिंध में हो रही है, कब से हो, फर्स्ट फेब्रुअरी। और ये पाकिस्तान फर्स्ट वुमेन ओनली बस होगा विद सिंध पिंक बस सर्विसेज लॉन्च फॉर वुमेन इन कराची फरवरी 2023 में। इसी तरह की जबरदस्त इन्फॉर्मेशन लिए सब्सक्राइब स्टार्ट करा एंड थैंक यू वेरी मच। और हमारे हौसला अफजाई के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। इसी तरह जबरदस्त इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के वसात से हासिल करें। थैंक यू वेरी मच।